So, welcome to the Legacy IAS. So, today we are going to cover a very interesting topic, and that was the current. Basically, the Canada PM Justin Trudeau, he has resigned, or he is just going to resign. Basically, he just waiting for the next leader of his own political party, that is Liberal Party. So, we are going to discuss in this particular episode what was the reason behind regarding this announcement of the resignations. You can see over here all the newspapers, they were having some headlines like Justin facing dissent within his party, US can no longer suffer, Trump wants to make Canada 51st state of the US. That is again very important. And then Justin announces resignation as Canada's prime minister. So what was the reason behind it? We are going to cover everything about this, and what can be the perspective for India and Canada relationship that was not good basically under this present prime minister. तो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. If you are new to our YouTube channel, please first subscribe the channel, and if you like our videos, please hit the like button and hit the bell icon to get the notification. So now we are going to start. So आप देख सकते हो यहाँ पे, you can see over here there are a lot of headlines are there regarding this. So now moving again, Justin Trudeau resignations. This basically announced resignation as Canada's PM and leader of the Liberal Party on 6th January 2025. Correct? That means yesterday. Today is 7th January. So he will continue as a prime minister until March 2025. कब तक ये रहेंगे? Until March 2025, because in March 2025 तक उन्होंने बोला है कि we need to find another successor of his own political party. Basically, when Liberal Party elects a new leader, resignation attributed to internal party pressure and declining public support. ये सारा चीज हम लोग कवर करेंगे. What was the reason behind it? So first important thing that we need to, what was the overview of Canada's political landscape? मतलब we just want to understand how many political parties are there in the Canada, we need to discuss. So Canada basically operates under a multi-party system with three major political parties. Understood? So three major political parties in Canada में basically, जैसे इंडिया में हमारे पास है बीजेपी, कांग्रेस और फिर एनसीपी और फॉर एग्जांपल तृणमूल कांग्रेस पार्टी. सो सेम वे कनाडा में भी अराउंड, ऐसा नहीं ओनली थ्री पॉलिटिकल पार्टीज हैं. कनाडा इज हैविंग मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, बट थ्री मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं. वन पॉलिटिकल पार्टी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, एलपीसी, जिसको कि जो प्रेजेंट पीएम जस्टिन थे, ही रिप्रेजेंट दिस ओनली. अनदर इज कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा, दैट इज अपोजिशन में है. एंड अनदर इज न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, दैट इज एनडीपी. सो दीज थ्री आर द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन द कनाडा. हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. अगर हम एक बात देखें यहाँ पे, सो लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी एंड एनडीपी. अगर आप एक चीज ध्यान दो, लिबरल पार्टी, हु इज द लीडर करेंटली? जस्टिन ट्रूडो. आइडियोलॉजी इसकी क्या है? सेंटर टू सेंटर लेफ्ट, सेंटर टू सेंटर लेफ्ट. एंड टोटल एमपी इनके पास है 153. इससे पहले मोर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इस पार्टी के थे, बट दैट पॉलिटिकल पार्टी वाज नॉट हैविंग द मेजॉरिटी मार्क्स ऑफ 170. जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा में अगर आपको, इफ यू वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, तो यू शुड हैव एटलीस्ट 170 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. बट जो लिबरल पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, इनके पास उतनी number of MPs were not there. Second party, conservative party, that is Pierre Poilievre. He is a center right to right. That means they are right wing political party, जैसे बीजेपी. So this is just like a बीजेपी. आप समझ सकते हो, this is just like a बीजेपी and this is just like a Congress. And the third political party is NDP, that is leader is Jagmeet Singh and his center left and socialism, and इनके पास total MP थे 25. So जो present government they were running, they were together with Liberal Party and NDP party. They form a coalitions and then they were running the government. Clear? Next is political context क्या है resignation का. So this person is Jagmeet Singh, belongs to the NDP political party. So see, when 2021 election results जब उसके बाद आए थे, so Liberal basically they form a minority government with Jagmeet Singh's NDP supports under an agreement lasting until September 2025. ऐसा इन्होंने सोचा था कि when elections हुआ, Liberal Party was not having sufficient number of member of parliaments, that is 170. So they got support from the NDP, from Jagmeet Singh. So they have signed an agreement कि when you are going to do all those things, then only I am going to give you support. And ये support कब तक चलना था? September 2025 तक ये support चलना था. After that agreement की जो important terms क्या थे?
एग्रीमेंट के जिनके इंपॉर्टेंट टर्म थे दे वर दीज: support for confidence motions and budget votes in exchange for liberal support on NDP policies like कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज थी? लाइक फ्री डेंटल केयर जो इंपॉर्टेंट थी, फ्री डेंटल केयर। आप समझ सकते हो कि डेंटल केयर इज सच ए बिग इशू इन कनाडा। इंडिया में देखो डेंटल केयर इज नॉट दैट बिग इशू, इंडिया में डेंटल केयर इज नॉट दैट कॉस्टली इवन, करेक्ट, बट वहां पे डेंटल केयर इज वेरी कॉस्टली एंड दैट इज द रीजन इज उन्होंने बोला था कि पर ईयर अराउंड $650 दे आर गोइंग टू गिव टू पर चाइल्ड मतलब अंडर 12 ईयर्स, अंडर 12 ईयर्स। उसके बाद चाइल्ड जो अंडर 18 है दे आल्सो विल बी कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। कितना है? $650 दे आर गोइंग टू गिव, कैनेडियन डॉलर, बेसिकली फ्री डेंटल केयर। उसके बाद फार्मा केयर लेजिस्लेशन उसका था एंड चाइल्ड केयर एंड वर्कर्स प्रोटेक्शन एफोर्ट। चाइल्ड केयर के लिए इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी दे हैव प्रॉमिस्ड दैट फॉर चाइल्ड दे आर गोइंग टू गिव $10। कितना? $10 दे आर गोइंग टू गिव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, करेक्ट है। तो ये इनका था दिस कोलिशन एग्रीमेंट्स बिटवीन लिबरल पार्टी एंड एनडीपी पार्टी। अगर आप ये सारे प्रॉमिस करोगे और प्रॉमिस को इंप्लीमेंट करोगे देन ओनली आई एम गोइंग टू सपोर्ट टू योर पॉलिटिकल पार्टी इन द गवर्नमेंट, करेक्ट, दिस वाज द केस। बट डेफिनेटली एज हमको पता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डू ऑल दोस थिंग्स बिकॉज कनाडा में भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। सो व्हाई देन ब्रेकअप विद एनडीपी? जो पॉलिटिकल पार्टी एनडीपी के साथ इनका ब्रेकअप क्यों हुआ? तो इन सितंबर 2025 बेसिकली एनडीपी विथड्रू सपोर्ट। एनडीपी ने क्या किया? जो जगमीत सिंह की पॉलिटिकल पार्टी है दे हैव विथड्रू द सपोर्ट एक्यूजिंग जस्टिन ऑफ फेलिंग टू चैलेंज द कंजर्वेटिव पार्टी इफेक्टिवली। क्या बोला? कि जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है यू आर नॉट एबल टू चैलेंज दैट पॉलिटिकल पार्टी इफेक्टिवली एंड बिकॉज ऑफ दैट कि whatever the agenda of this NDP was there they are not able to fulfill that also. That is the reason is जो NDP थी इन्होंने जो अपना सपोर्ट था that support they have withdrawn on September 2024, जबकि प्रॉमिस कब तक किया था? सितंबर 2025 तक प्रॉमिस था बट वो प्रॉमिस टूट गया। रीजन बिहाइंड रिजिग्नेशन क्या है? रीजन बिहाइंड कई सारे रीजन हो सकते हैं, ऐसा नहीं ओनली वन रीजन होगा, कई सारे रीजन होंगे इस रिजिग्नेशन के पीछे। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हम वही रीजन सिर्फ कवर करेंगे। सो व्हेन वी कवर रीजंस बिहाइंड, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज इंटरनल जो है ना पार्टी कॉन्फ्लिक्ट। क्या था? फर्स्ट रीजन इज इंटरनल पार्टी कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, क्या था वो? लिबरल पार्टी एमपीज एंड द लीडर्स दे एक्सप्रेस डिस्कंफर्ट विद ट्रेड्यूस लीडरशिप। जो जस्टिन जो प्राइम मिनिस्टर कनाडा के हैं उनके लिए जो डिस्कंफर्ट हुआ कि दे दिस गाय इज नॉट हैविंग लीडरशिप क्वालिटी। जहां देखो वहां झगड़ा कर ले रहा है, इंडिया से झगड़ा कर लिया, यूएसए से झगड़ा कर लिया, किस चीज के लिए आप झगड़ा कर रहे हो? व्हाई एक्चुअली दिस जस्टिन बेसिकली not aligning with India? Because to get support of the Sikh community that is majorly they are living in Ontario and British Columbia, around 7,70,000 Sikhs they are living in Canada. इनका total जो है 2% of the population of Canada, that's it, only 2%. but उनके जो 2 province है that is Ontario and British Columbia, वहां पे उनकी संख्या ज्यादा है। just to get support of that because they are having some Khalistan agenda also, just to get the support of those votes this guy was actually fighting with India also, fighting against India. That is the case. आप समझ सकते हो कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस खराब कर रहे हो जस्ट फॉर द 2 provinces, करेक्ट। अनदर इंपॉर्टेंट जो अनदर पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको बोलते हैं एनडीपी, जगमीत सिंह पॉलिटिकल पार्टी। सो दिस गाय आल्सो हैविंग द एजेंडा ऑफ खालिस्तानी, दिस गाय आल्सो वांट सपोर्ट ऑफ द सिख। सो इस गाय को भी खुश करने के लिए जो जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिटिकल पार्टी जस्टिन ट्रूडो थे ही वाज प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। So basically liberal party. Second है nearly 2 dozen MPs, like कितना? 2 दर्जन MPs they have called for his resignation earlier and cabinet exodus। समझ रहे हो? जो उनके कैबिनेट मंत्री थे, समझ रहे हो आप, जो जैसे अपने यहाँ यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं वैसे ही जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट थी वहां पे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे 8 मिनिस्टर्स दे रिजाइंड इन द रिसेंट मंथ। कितने? टोटल 8 मिनिस्टर्स इन्होंने रिजाइन ही कर दिया है। की रिजिग्नेशन में आप देखो किसका नाम होता है? डिप्टी एंड फाइनेंस मिनिस्टर इन दिसंबर 2024। सोचो 16 दिसंबर 2024 को, दैट मीन जस्ट 20 डेज बिफोर ओनली, जो वहां के डिप्टी एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। आप समझ सकते हो। तो जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर ही रिजाइन कर दे रहा है इसका मतलब फाइनेंस मिनिस्टर इज नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन यू, तो बिकॉज ऑफ दैट आल्सो यू हैव टू रिजाइन। नेक्स्ट रीजन है डिक्लाइनिंग पब्लिक अप्रूवल। लोग ही आपको पसंद नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल Trudeau's approval rating dropped to 26% in October 2024 from 54% in 2021. That means within 3 years,
योर जो अप्रूवल रेटिंग है, मतलब हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द पीपल्स दे लाइक यू, दे सपोर्ट यू, दैट रिड्यूस्ड फ्रॉम 54% टू 26%. सेम में जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज लिबरल पार्टी, पोलिंग एट 33% कंपेयर टू 45%. मतलब कंजर्वेटिव जो पॉलिटिकल पार्टी है जो अपोजिशन में है उसको 45% सपोर्ट मिल रहा है, एंड जो लिबरल पार्टी उसको सपोर्ट 33% मिल रहा है. तो अगेन जो आपके लिबरल पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे दे विल बी अनहैप्पी. नेक्स्ट अगर हम रीजन देखें, पॉलिसी एंड गवर्नेंस ए फेलियर, क्योंकि आपने पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेलियर हुआ. कैसे? क्रिटिसाइज्ड फॉर मिस हैंडलिंग कनाडा इंडिया रिलेशंस. मैंने आपको बताया था कि ही हैज मिस हैंडल्ड कनाडा एंड इंडिया रिलेशंस. जहां जहां स्टेज पर फॉर एग्जांपल कोई भी लोग इंडिया के अगेंस्ट नारेबाजी कर रहा है, कोई भी इंडिया के अगेंस्ट प्ले कर रहा है, यू आर सपोर्टिंग दैट गाय, करेक्ट और नॉट? सो जस्ट टू गेट दिस 2% वोट्स, so इसके लिए भी उनको क्रिटिसिज्म मिला है फ्रॉम द कनाडा इटसेल्फ. Another is missteps in addressing issues raised by the US also, including trade tariffs. जो ट्रेड टैरिफ का जो इशू था raised by the US, उसकी वजह से भी उनको क्रिटिसिज्म मिला है. एंड कनाडा इज ग्रैपलिंग विथ हाउसिंग क्राइसिस. ये सबसे बड़ा मुद्दा है कनाडा में. मैं आपको बता दूं, अगर आप कनाडा के ट्विटर पे भी जाओगे, कनाडा के जो पॉलिटिकल पार्टी के लिबरल पार्टी, व्हेनेवर दे ट्वीट, देन मैंने देखा है कई लोग उनको बोल रहे सबसे बड़ा प्रॉब्लम दे आर फेसिंग हाउसिंग क्राइसिस. मतलब जो एवरेज होम प्राइसेस है वो कब कहां तक निकल गई? 7,16,000 कनाडियन यूएस डॉलर इन 2024. जो एवरेज हाउस उनको खरीदना है उसकी वैल्यू हो गई है 7 लाख एक्चुअली यूएस डॉलर, सॉरी कैनेडियन डॉलर, लीविंग मेनी कैनेडियंस स्ट्रगलिंग कि दे कैन नॉट बाई द हाउस. इवन जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है वो अराउंड मोर देन 60 to 70% बढ़ गया है कि दे आर नॉट एबल टू परचेज द हाउस. दैट इज वन मोर इशू. एंड जो हाउसिंग प्राइसेस है फॉर एग्जांपल अर्लियर जो होती थी लाइक ओनली 3 लाख कैनेडियन डॉलर, वो अभी 7 लाख के ऊपर निकल गई है. Another is inflation. Inflation reached 3.8% in 2024. See, इंडिया में 3.8% इन्फ्लेशन सही समझा जाता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है. बट कनाडा में 3.8% इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है बिकॉज वहां पे इंटरेस्ट रेट इज नॉट दैट हाई, करेक्ट? सो अल्टीमेटली पीपल्स आर गोइंग टू लॉस द परचेजिंग पावर आल्सो, करेक्ट? नेक्स्ट अगर हम रीजन देखें यहाँ पे कि इम्पैक्ट ऑन कनाडास पॉलिटिक्स, क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम देखें इम्पैक्ट ऑफ कनाडास पॉलिटिक्स आफ्टर दिस रेजिग्नेशन. इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहले इम्पैक्ट जो हमने ऑलरेडी देखा है को जो लिबरल और एनडीपी जो कोलिशन बनाए थे इन्होंने, दैट कोलिशन ऑलरेडी हैव बीन ब्रोकन डाउन इन सितंबर 2024. तो वो कोलिशन ऑलरेडी खत्म हो गया है. अनदर इज कंजर्वेटिव्स लीड बाय बेसिकली पियरे पोलिवियरे. that guy is favored to win next election that is supposed to happen in October 20. तो जो नेक्स्ट जो पीएम हो सकता है कनाडा का वो ये गाय हो सकता है. ही कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कनाडा, करेक्ट है? तो ही बिलोंग टू द कंजर्वेटिव पार्टी, दैट पार्टी विच इज राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी. And Deputy PM resigned in December 2025 worsening internal party instability. मैंने आपको बताया था जो आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया. इसकी वजह से जो आपका जो पॉलिटिकल पार्टी है, लिबरल पॉलिटिकल पार्टी, उस पे एक फॉर एग्जांपल एक तगड़ा झटका लगा है आपको, करेक्ट है ना, इसकी वजह से. नेक्स्ट अगर हम चीज देखें फॉर एग्जांपल इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, इंडिया के लिए इसका क्या इम्प्लीकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल बिकॉज प्रेजेंट जो पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, उनके कार्यकाल में, उनके जो टाइम पीरियड में रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड कनाडा वाज कंप्लीटली एट द लोएस्ट लेवल. सो Trudeau's strained relationship with India, he accusation of targeting India to divert attention from domestic issues. मतलब he want to divert the domestic issues like dental care, like child care, like for example senior citizens pension issue, like housing crisis, inflations. ये जो domestic problem थी उनको divert करने के लिए what he was doing, he was continuously targeting India. करेक्ट है? इम्पैक्ट ऑन कनाडा इंडिया ट्रेड एंड बायलैटरल टाई, इसकी वजह से ट्रेड और बायलैटरल टाई में भी प्रॉब्लम हुआ. बट नाउ चांसेस आर दैट रिलेशंस कैन बी इंप्रूव्ड. सो इंप्रूव्ड चांसेस फॉर इंडियाज पार्टिसिपेशन इन कनाडा होस्टेड G7 समिट इन 2025. सो इन 2025 में कनाडा इज गोइंग टू होस्ट G7 समिट. तो वहां पे इंडिया के चांस अच्छे बन सकते हैं बिकॉज ही विल नॉट बी देयर, ही विल नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर देयर. नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल लिबरल पार्टीज, क्या नेक्स्ट स्टेप इनका क्या हो सकता है? व्हाट इज कैन बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस पर्टिकुलर लिबरल पार्टी?
सो नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो पार्लियामेंट प्रोरोग्यू टिल मार्च 2024, जो पार्लियामेंट है उसको ऑलरेडी प्रोरोग्यू मींस होता है कि सेशन विल नॉट बी कंडक्टेड, पार्लियामेंट बेसिकली वो रिसेस में चला गया है, करेक्ट, रिसेस में, करेक्ट। सो प्रोरोग्यू सिंपली मींस है नो सेशन, सो पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं होगा वहां पे, जैसे, करेक्ट है। सो कब तक नहीं होगा, टिल मार्च 24 2002 रीसेट द गवर्नेंस, एंड मार्च मंथ में फॉर एग्जांपल न्यू लिबरल पार्टी लीडर टू बी इलेक्टेड बाय मार्च ओनली, दैट इज मार्च 2025, and then in October 2025 no immediate elections, next federal election scheduled for October 2025, जो नेक्स्ट वहां पे इलेक्शन होगा वो अक्टूबर 2025 में दे आर गोइंग टू कंडक्ट दैट इलेक्शंस। नेक्स्ट इज की क्वेश्चंस एंड फ्यूचर आउटलुक, क्या हो सकता है फ्यूचर आउटलुक। सो विल पियरे पोलिवियर दैट बिलोंग्स टू द कंजर्वेटिव पार्टी दैट इज गोइंग टू विन 2025 इलेक्शंस, डेफिनेटली अगर हम रेटिंग देखें देन डेफिनेटली इनका रेटिंग अच्छा है कंपेयर टू द लिबरल पार्टी, तो चांसेस आर दैट कंजर्वेटिव पार्टी कैन कम इनटू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, कैन लिबरल पार्टी रिगेन पब्लिक ट्रस्ट विथ न्यू लीडरशिप, जैसे कि बाय मार्च 2025 दे आर गोइंग टू इलेक्ट न्यू लीडर, वेदर लिबरल पार्टी का जो ट्रस्ट है अमंग पीपल वो इंक्रीज होगा या नहीं, वक्त बताएगा। एंड हाउ विल ट्रेड्यू बेसिकली रेजिग्नेशन अफेक्ट कनाडा यूएस एंड कनाडा इंडिया रिलेशनशिप। रिसेंटली फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड स्टार्टलिंग स्टेटमेंट दैट कनाडा कैन बी द 51st, दैट इज 51st 51 स्टेट ऑफ द यूएसए। वो बोल रहे थे हम लोग इंडिया में अखंड भारत का सपना देखते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक सपना देख लिया है अखंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें अब कनाडा जो है वो यूएसए का पार्ट होगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। देखो उन्होंने बोला है, होगा या नहीं, डेफिनेटली चांसेस तो बहुत ही रेयर होते हैं, बट ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है। तो देखो डोनाल्ड जस्टिस ट्रूडो के रेजिग्नेशन के बाद देखो फॉर एग्जांपल यूएसए के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं। इंडिया में भी फॉर एग्जांपल ये अच्छी बात है बिकॉज दिस गाय वाज नॉट सपोर्टिव फॉर इंडियाज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, करेक्ट। So this was for example today's video regarding this resignation of the Canada PM. I hope you liked the video. Please share with your friends. Thank you.